Hello and welcome to our Vision Institute. A good morning to you all, and I hope you all are fine and in good health. So, hope you all are doing good. A very good morning to you all, and welcome once again to our Vision's YouTube channel. So, I am again here like every day with daily dose of vocabularies based on the Hindu editorials. Okay, so today we'll be doing again 10 new words and there will be a new interesting idiom. So, we will see what are the idioms that we are going to learn today. So, without any delay, let us start the class. So, what will be our points of discussion? Let us see what is going to be our points of discussion. Our points of discussion is going to be vocabulary words based on the Hindu editorials, word meanings based on that. Okay, synonyms and antonyms, and today we'll be learning some sports idioms. Okay, guys, so today we'll be learning some sports idioms and phrases. So, today we'll be learning sports idioms. Okay, so let us see without wasting any time. Let us see what is our first word. Our first word is quantum. क्वांटम इज इटसेल्फ अ नाउन जिसका मीनिंग है मात्रा या फिर क्वांटिटी. So synonyms can be sum or amount and antonyms can be part and whole. Okay, so how can we use quantum in a sentence? Let's see. While quantum energy could not be measured fully, the scientists continued to work on the experiment. So what is the meaning? The quantum energy could not be measured fully. The scientists continued to work on the experiment. तो साइंटिस्ट ने कंटिन्यू किया एक्सपेरिमेंट में वर्क करना, लेकिन क्वांटम एनर्जी मेजर नहीं किया जा सकता फुल्ली. Okay, so quantum of energy means the quantity of energy cannot be measured fully. ये जानने के बावजूद वो अपना काम जारी रखे. Okay, what is our second word? Our second word is precinct. Okay, precinct is itself a noun जिसका meaning है प्रसीमा. Okay, its meaning is department and synonyms are area or ward. Its antonyms can be whole and full. How to use it in a sentence? Let's see. I am working in this precinct. So I am working in this department. Okay. What is our next word? Our third word is proclivity. Proclivity is itself a noun जिसका meaning होता है इच्छा या फिर प्रवृत्ति. Okay, you can say inclination. So I have an inclination towards or something. Or you can say I was inclined towards something. That is what inclination means. इसके synonyms हो सकते हैं penchant या फिर predilection. Okay, antonyms हो सकते हैं dislike या फिर hate. How to use it in a sentence? Your proclivity towards him is getting on my nerves. तो तुम्हारा जो उसके तरफ inclination है, मतलब उसके तरफ लगाव है, is getting on my nerves. Okay, so this is our first sport idiom. What is it? It is ace in the hole. Ace in the hole. इट इज़ अ स्पोर्ट ईडियम. जैसे कि हमने देखा है क्लास के शुरू में कि ये एक स्पोर्ट ईडियम है. इसका मीनिंग है अ हिडन स्ट्रेंथ और एडवांटेज. कोई स्ट्रेंथ या फिर एडवांटेज जो छुपा हुआ रहता है या छुपा हुआ है. इस ईडियम को सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं. दे विल विन द गेम सिंस देयर गोलकीपर इज़ एन एस इन द होल. तो वो लोग गेम जीत जाएंगे क्योंकि उनके जो गोलकीपर है वो है एस इन द होल. मतलब वो जो है छुपे रुस्तम है, मतलब उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथी पर्सन छुपा हुआ है जो कि बहुत कुछ कर सकता है. तो ऐसे गोलकीपर उसके टीम पे है तो वो ज़रूर जीत जाएंगे. ओके, सो एस इन द होल मीन्स अ हिडन स्ट्रेंथ और एडवांटेज. ओके,
What is our next word for today? Our fourth word is punitive. Punitive is itself an adjective जिसका meaning है दंडात्मक. Okay, we can say retaliatory. Okay, so its synonyms can be vindictive or punishing. Antonyms can be beneficial or rewarding. How to use it in a sentence? Let's see. Don't be punitive, otherwise you will get into a soup. Okay, तो don't be punitive, आप vindictive मत होइए, नहीं तो you will get into a soup. Okay, what is our next word for today? Our next word for today is quietude. Quietude is itself a noun जिसका meaning है शांति, और you can say calm. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डोलड्रम्स या फिर हुश या फिर हश या फिर हुश, कुछ भी बोल सकते हैं आप. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं डिस्टर्बेंस एंड एजिटेशन. सो हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? लेट्स सी. बी क्वाइट्यूड, डोंट एस्केप योर लिप्स. तो बिल्कुल काम रहिए, डोंट एस्केप योर लिप्स मतलब अपने होठ मत खोलिए कुछ भी अनाप शनाप बकने के लिए, या थोड़ा भी बात मत कीजिए, काम रहिए. ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर सिक्स्थ वर्ड इज अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड इज इटसेल्फ एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है अभूतपूर्व या फिर एक्सेप्शनल. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं बिजार या फिर एनोमैलस. एंटोनिम्स हो सकते हैं फैमिलियर या फिर रेगुलर. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? वी हैव कम अक्रॉस अनप्रेसिडेंटेड रिएक्शंस दैट वर नॉट एक्सपेक्टेड. तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड रिएक्शन हम लोगों को मिला है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था. अनप्रेसिडेंटेड रिएक्शन मतलब जो कि एक्सेप्शनल रिएक्शंस है. ओके, जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन के बाहर थे. ओके, सो वी हैव कम अक्रॉस टू आवर सेकंड ईडियम विच इज द कॉल द शॉट्स. कॉल द शॉट्स. दिस इज अगेन अ स्पोर्ट ईडियम जिसका मीनिंग है मेक द डिसीशंस. सो टू मेक डिसीशंस इसको हम लोग ईडियम्स में कह सकते हैं कॉल द शॉट्स, मतलब एक डिसीशन लेना. इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? द न्यू कोच इज़ कॉलिंग द शॉट्स. तो जो न्यू कोच है वो डिसीशन ले रहे हैं या फिर ही इज़ मेकिंग डिसीशंस. सो दैट इज़ व्हाट वी कैन से, द न्यू कोच इज़ कॉलिंग द शॉट्स. दैट मीन्स टेकिंग डिसीशंस. Okay, what is our next word? Our next word is piquant. Piquant is an adjective जिसका meaning है चटपटा या फिर टैंगी. इसके synonyms हो सकते हैं पेपरी या फिर स्पाइसी. एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्लेवरलेस या फिर टेस्टलेस. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? We need to eat piquant dishes in order to get the real taste of Royal Rajasthan. तो रॉयल राजस्थान का रियल टेस्ट पाने के लिए हम लोगों को piquant dishes खाने चाहिए. ओके, तो piquant dishes मतलब spicy dishes. ओके, ओके, so let's see what is our next word. Our next word is rusticate. Rusticate is itself a verb जिसका मीनिंग है निष्कासित करना या फिर एक्सपेल. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डिस्पेल या फिर ऑस्ट्रासाइज. एंटोनिम्स हो सकते हैं इनकॉर्पोरेट या फिर इनकलकेट. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? लेट्स सी. द प्रिंसिपल विल रस्टिकेट ऑल द स्टूडेंट्स हु डोंट डिजर्व टू बी टॉट इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. तो प्रिंसिपल क्या करेंगे? ऐसे सारे स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल रस्टिकेट कर देंगे जो लोग डिज़र्व नहीं करते एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रेप, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है ढाकना या फिर कवर बोल सकते हैं. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रैप या फिर एनवेलप.
इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अनरैप या फिर अनकवर. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, लेट्स सी. द स्नो ड्रेप्ड एवरीथिंग एज द टेम्परेचर केप्ट डिटेरियोरेटिंग. तो क्या हुआ, टेम्परेचर डिटोरिएट कर रहा था, इसके वजह से मतलब टेम्परेचर लो डाउन हो रहा था, टेम्परेचर was getting low. दैट इज़ वाई द स्नो ड्रेप्ड एवरीथिंग. स्नो से सारे चीज़ें कवर हो गए. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रेप्ड. What is our next idiom? So our next idiom is chip in. What is the meaning of chip in? Again, it's a sports idiom which means donate money or time. So to donate money or time donate करने का मतलब होता है chip in. How to use it in a sentence? Why don't you chip in and support the refugees? तो आप चिप इन क्यों नहीं करते हो और रिफ्यूजीज को आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? ओके, चिप इन करना मतलब डोनेट करना या टाइम या फिर पैसा, कुछ भी. तो हमारा लास्ट वर्ड क्या है आज का? हमारा लास्ट वर्ड है प्रमोशन. प्रमोशन जो है खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है एडवांसमेंट. ओके, या फिर प्रोन्नति भी कह सकते हैं. एडवांसमेंट इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एलिवेशन या फिर एग्रेंडाइजमेंट. एंटोनिम्स हो सकते हैं हिंड्रेंस या फिर डिबेसमेंट. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं. दे हैव गॉट द प्रमोशन बिकॉज दे डिजर्व्ड इट इन वन वे और द अदर. दे हैव गॉट द प्रमोशन, तो उन लोगों को प्रमोशन मिल गया बिकॉज दे डिजर्व्ड इन वन वे और द अदर, क्योंकि वो लोग वो डिज़र्व करते थे. ओके, क्योंकि वो लोग उस प्रमोशन को डिज़र्व करते थे, इसीलिए उन लोगों को प्रमोशन जो है मिल गया. Okay guys, so this was our 10 vocabs and 3 idiomatic expressions. Today we did sports idioms. I hope you liked the class. If you liked the class, then don't forget to like and share it with your friends who are preparing for government examinations. And yeah, don't forget to press the bell icon so that you get regular updates. Okay guys, this was all for today. Meet you in the next class. Thank you.